خواتین و حضرات، میرے ہمدم دیرینہ امروہہ فاؤنڈیشن کے صدر جناب فرمان حیدر صاحب، فرید صاحب، بہن کرشنا دامنی صاحبہ اور وہ حضرات کے جن کے اسماء گرامی مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں. بڑا حساس مسئلہ ہوتا ہے کسی کا اگر نام رہ جائے، لیکن وقت کی تنگی بھی پیش نظر رہتی ہے. بالخصوص تشریف لائے ہیں ڈاکٹر انجم بارہ بنکوی صاحب، مجھے نظر نہیں آ رہے، وہ شاید دوسرے حصے میں ہوں گے. بہت بہت شکریہ. آج کی اس محفل میں صرف میری محبت میں بامبے سے تشریف لائے ہیں ہمارے وسیع قریشی صاحب، جاوید قریشیاں فرمائے، الطاف صاحب اور دیگر تمام ہمارے معزز مہمانان. ان مواقع پہ اصل میں الفاظ جو ہیں وہ مشاہدے کو، تجربات کو تو بیان کر سکتے ہیں، لیکن احساس کو زبان نہیں دے سکتے. کوشش کرتا ہوں چند الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی. سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں فرمان حیدر صاحب اور فرید صاحب آپ کا، امروہہ فاؤنڈیشن کا. اصل میں حقدار تو اس اعزاز کا نہیں تھا، فخر امروہہ نہیں بلکہ فرش امروہہ کا تھا. اور جو حقیقت ہے، سچی بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو زیادہ جانتا ہے. مجھے عربی کا مقولہ یاد آ رہا ہے کہ المؤمن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے، وہ وہی دیکھتا ہے جو اس کو نظر آتا ہے. تو اصل میں ان کی بصیرت کا کمال ہے، نظر کا کمال ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ جن خیالات کا اظہار میرے دوست ڈاکٹر مہتاب امروہوی صاحب، یہ امروہہ کا مہتاب ہیں اور دوسری جانب میرے بیٹھے ہیں، میں انہیں امروہہ کا تاج کہتا ہوں، ڈاکٹر سراج ہاشمی میرے دوست. تو جو بھی کچھ کہا میں کوشش کروں گا اس پر اترنے کی، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ خدا نے مجھ کو نوازا ہے اس قدر، پھر بھی میں اپنے علم کی ہر انتہا پہ جاہل ہوں. سچائی اور حقیقت تو میرے دوستو اتنی ہی ہے اور یہی ہے. آگے جو کچھ ہے وہ آپ کا حسن نظر، آپ کا بڑا پن ہے. اور پروین شاکر کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے، اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے ہے. تو وہ سچی بات یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے. یہ اعزازات، انعامات انسان کی اتنی لائبلٹی، اتنی اس کی کوالٹیز نہیں ہوتی ہیں. ان کے پیچھے کچھ دعائیں، کچھ محبت کار فرما ہوتی ہیں، وہ سفر طے کراتی ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ والدہ جو کچھ ہے آج میں انہیں مس کرتا ہوں. تو یہ اصل میں انہی کی محبتوں کا طفیل ہے، فیضان ہے جو چل رہا ہے. یہاں مجھے ابھی اویس رضوی بھی دیکھے تھے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے. چلے جن کے نام مجھے یاد آئیں گے میں گوش گزار کر دوں گا، آپ کو بتا دوں گا. خواتین حضرات، جہاں تک بات ادب کی ہے یا اردو کی ہے، اگر میں اس پہ بات کروں تو اب پروفیسر اختر الواسی صاحب جیسی شخصیت جہاں پر ہو تو ان کے سامنے لب کشائی کرنا اردو پر یا ادب پر یا لٹریچر پر، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سورج کو جگنو دکھانا. تو یہ تو میری بساط نہیں. اور جہاں علمی اور روحانی شخصیت مفتی عفان صاحب، ان کا تو میرے اوپر احسان عظیم ہے کہ امروہہ سے تشریف لائے. یہ اصل میں امروہہ کا وقار ہیں اور اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے. تو ان کے سامنے میری کیا جسارت کہ میں علم پر یا ادب پر بات کروں. البتہ میں جب آتا ہوں تو کوشش یہ کرتا ہوں، چونکہ قلمکار بڑا حساس ہوتا ہے، وہ اپنی اندر کی آنکھ سے معاشرے کو اور سماج کو دیکھتا ہے. تو یہ مواقع ہوتے ہیں جب ایک جگہ ملاقاتیں ہو جاتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ میں نے کئی سال سے ان کی کوشش تھی، ان کا حکم تھا فرمان صاحب کا، اور میں ٹالے جا رہا تھا. ٹالے کیا جا رہا تھا، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ انسان اپنی حقیقت خود پہچانتا ہے، اس کا نہ اہل نہ اہلیت، بس محبت ہے لوگوں کی. خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب میں یہاں آتا ہوں تو جو ایسی چیزیں میں دیکھتا ہوں معاشرے کی، کچھ سلگتے موضوعات، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھوں. جو میری تھنکنگ ہے، مے بی آئی ایم رانگ بٹ دیٹس ٹرو، کہ جو میں نے ریئلائز کیا. ایک تو بات تو یہ، چونکہ یہاں سے میسج جاتا ہے، راجدھانی میں کھڑا ہو کر میں بات کر رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ خوشی یہ ہوئی بہت دیکھ کر کہ جو تعلیمی جو ترقی تھی اور جو اس کے لیے کوششیں تھیں
माशाल्लाह वो बहुत हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं। दूसरा पहलू जो ज़िंदगी का मैं देख रहा हूँ, हर तरफ एक आओ बुका है मुसलमान के तनज़्ज़ुल के असबाब। असल चीज एक चीज को हम टारगेट करते हैं, पूरी कौम उसके पीछे पड़ जाती है। हर तरफ एक ही नारा, एक ही आवाज, तालीम तालीम तालीम। बहुत अच्छी बात है, तालीम रोशनी है, तालीम हिदायत है, तालीम नूर है, तालीम मंजिल है, तालीम इंसान को सलीका सिखाती है। बट द क्वेश्चन इज व्हाट के ये इतनी कुमकुमे जल रहे हैं, इतनी रोशनियां यहाँ पर हैं, मुझे कोई बता दे कि ये बहुत रोशनियां यहाँ पर हों और इसके पीछे जो है और बटन ना हो, या आप सोने का बटन लगा दें, लेकिन पावर हाउस से अगर पावर ना हो तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि आप इसको पुरनूर कर सकते हैं, जला सकते हैं? हो सकता है? नहीं हो सकता। मैंने तो आज तक कोई ऐसी ट्रेन नहीं देखी कि जिसका इंजन ना हो। मैंने तो आज तक कोई ऐसी गाड़ी नहीं देखी कि जो बगैर पेट्रोल के चल रही हो। मैंने तो आज तक कोई ऐसी तहरीक नहीं देखी कि जिसके पीछे मोटिवेशन के पीछे पैसे का हाथ ना हो। दिस इज द बैकबोन ऑफ द मोटिवेशन ऑफ एवरीथिंग। तो मैं कहना मैं ये चाह रहा हूं कि जो सरमायादाराना निजाम है हमारा, वो एक सिमट कर रह गया है अपने घर तक, अपनी चार दीवारी तक। जबकि जिंदगी की हकीकत जो है वो ये है कि जिंदगी, किताब जिंदगी का सबसे अहम तरीन लफ्ज आप है और सबसे कम तरीन लफ्ज मैं है। हम पहले लफ्ज को बोलकर दूसरे में सिमट के पूरी कौम रह गई है, और हमारी ये दौलत, हमारा ये पैसा, बिल्डिंगें और कारखाने सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हैरत ये बस तालीम है, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ। बहुत अच्छी बात है, बच्चों तालीम को एक मिशन बनाए, जैसे डॉक्टर सिराज हाशमी ने इसको मिशन बनाया, मशगला नहीं बनाया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक बच्चा जिसकी कफालत उसके माँ बाप कर रहे हैं, 4 बच्चे हैं, उसकी इनकम 500 रुपए रोज की है, तालीम का खर्चा 1000 रोज का है, बाकी 500 कहां से आएंगे? और ये किसका फर्ज है? ये कौन देखेगा? तो ये चीज देखकर मुझे बड़ी कोफ्त हुई है, बड़ा अफसोस हुआ। और मैंने देखा और मुलाकात हुई, एक मस्जिद के इमाम साहब 15 साल से कई इमामत कर रहे हैं, और इनके इर्द गिर्द मैं कई को जानता हूं, करोड़पति हैं, लेकिन 3 महीने का तनख्वाह नहीं मिली उनको। उजल का जब जहां कल थे वहीं आज है, और पता नहीं कब तक हो रहेंगे। ऐसे वाकयात 1 2 3 नहीं, न जाने कितने हैं, और इसे देखकर बड़ी तबीयत कुड़ती है। और फिर तालीम कि हम वो करते हैं, जो कुछ खिदमत खल्क हो भी रही है तो बाखुदा वो सिर्फ अखबारी हद तक है। मैंने कोई फोटो देखा कि वो एक नेता साहब जो एक थैला लेके फ्रूट का हॉस्पिटल में वो दे रहे हैं, और 4 उनके जो खादिमी थे फोटो निकाल रहे हैं। अब मैं आज तक समझने का कासिर हूं कि पता नहीं उनके उसमें इतनी कमजोरी थी कि 4 लोग खड़े थे, या वो थैला इतना भारी था कि उसके लिए 4 लोग पकड़ रहे थे। ये हमारी खिदमत का और ये खिदमत खल्क का हमारा ये स्टैंडर्ड बन चुका है। और फिर हम कहते हैं कि कौम को तालीम देनी चाहिए, बच्चों को तालीम देनी चाहिए। एक गली के नुक्कड़ पर जो 25 साल पहले एक घर था, वो आज भी वो रक्षा चला रहा, जो कल चला रहा था आज भी चला रहा है। उसका बच्चा जो छोटू था आपके घर में नौकरी कर रहा था, आज भी वो नौकरी कर रहा है, गुलामी कर रहा है। एक शख्स जो आपके कुनबे कबीले के अंदर बेघर था, वो आज भी बेघर है। आपके घरों पे घर बन रहे हैं, आपकी बिल्डिंगें बन रही हैं। एक अपनी औलाद की जब आप शादियां करते हैं तो उस पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, सिर्फ डेकोरेशन के ऊपर। एक गली के नुक्कड़ पर एक मोहल्ले पे गरीब की बच्ची इसकी सिस्कियां ले रही है, आपके ढोल ताशे हो रहे हैं। ये कौन सा निजाम है? फिर कहते हैं तरक्की नहीं हो रही, परेशान हो रहे हैं। कहां से इसके असबाब, इसके जो है सारे तनज़्ज़ुल के तो हमारे अंदर है, तो इस चीज को महसूस करना पड़ेगा। तो मेरी गुजारिश है थोड़ा सा आगे बढ़े, और ऐसा ना हो माल इतना छोड़ के जाए कि वक्त निजा जो है तो औलाद वकील को नहीं डॉक्टर को बुलाए। हमारी सूरत हाल ये होती है कि पूरी जिंदगी अपने जिंदगी के जंगल में कोशिश करते, कितना खा लेंगे आप? एहसास खत्म हो गया है, हम किसकी उम्मत में हैं। मुझे याद आ रहा है कि ये तमाम चीजें मैं देखता हूं तो बड़ी कोफ्त होती है कि अपनी खुशी के लिए हम इस हद तक जाते हैं, पैसा पानी की तरह बहा देते हैं। जब खिदमत खल्क का नंबर आता है तो वहां पर हमारे दिल जो है सुकड़ जाते हैं। जबकि जिंदगी का फलसफा सिर्फ 3 लाइनों के अंदर बयान किया जा सकता है, और वो ये है कि जो खा गए वो उड़ा गए, जो जोड़ गए वो छोड़ गए, जो दे गए वो ले गए। जिंदगी जो है तो जनाब अली ये है जिंदगी। और ये इस अपने तो बहुत करीबी लोग हैं। सच्ची बात तो ये है, नहीं, जिंदगी का फलसफा इसी में है कि जो दे गए, जो खा गए वो उड़ा गए, जो
जोड़ गए वो छोड़ गए, जो दे गए वो ले गए। सच्ची बात यही है। और किसी बुजुर्ग का मुझे मकूला यहाँ पर याद आ रहा है कि देते रहा करो, वरना दरख्त भी जब फल देना बंद कर देते हैं तो वो आग का ईंधन बन जाते हैं। आज हमारी पूरी कौम, मतलब ये नहीं कह सकते आप इस कौम ने तरक्की नहीं की है, इतनी तरक्की की है कि मैं हैरान हूं कि, और दुआ करता हूं कि अल्लाह इससे 1000 गुना ज्यादा इन लोगों को अता फरमाए। लेकिन किसके लिए? अपने घर में सिमट कर रह गया तमाम सब कुछ। अपनी खुशियां, दूसरों की खुशियों का आपको एहसास नहीं, दूसरों के दर्दमंदी का एहसास नहीं, हमदर्दी निकल गई, दर्दमंदी निकल गई। तालीम के लिए पीछे सब पूरी कौम चल पड़ी है। तालीम तालीम तालीम, वो कहाँ से हासिल करेगा? पहले उसका जहन्नम जो पेट का ईंधन है पहले वो तो दे। रोजी रोटी और मकान, 3 चीजें इंसान की जरूरत में है, वो जरूरत उसकी पूरी नहीं हो रही। आप तालीम का उसके पीछे लेके डंडा खड़े, कहाँ से वो पूरा करेगा खर्चे? आपका बेटा IAS ऑफिसर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, वो कम से कम इतना तो ग्रेजुएशन कर ले। हो कोशिश की कभी? ऐसी कभी नहीं की। मैंने तो यही देखा, जो कल चाय लेकर आ रहा था छोटू, आज भी चाय लेकर आ रहा है। अरे अल्लाह के बंदो, ठीक है उससे खिदमत लो, लेकिन कम से कम उसके घर की कफालत तो करो ना। देखो तो सही, ये 2-4 नहीं। और ऐसा नहीं कि दुनिया ऐसे लोगों से खाली है। मैं स्टेज पे कई नाम ले सकता हूँ, लेकिन उनकी सखावत को मैं ज्यादा वो नहीं करना चाह रहा। बहरहाल ये अल्लाह और इंसान के दरमियान रहते हैं। लेकिन ऐसे मुट्ठी भर लोग हैं, चंद लोग हैं। मुझे वाकया याद आ रहा है, माइकल हार्ट ने किताब लिखी द 100, बड़ी मशहूर किताब है, पढ़िएगा आप भी। तो उसके अंदर उसने ईसाई होकर भी एक सबसे पहली जो पर्सनालिटी, उसमें 100 पर्सनालिटी हैं, शख्सियात हैं, जो पहली शख्सियत उसने चुनी तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को उसने चुना। तो उससे सवाल किया गया कि आपने ईसाई होकर और इनको क्यों चुना, इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? वो एक वाक़या बयान करता है। आप तारीख का और आप पलटें और वहां पर ये वाक़या मिलेगा आपको। ओहो, क्या इंसान को झंझोड़ने के लिए काफी है। बस मेरी रिसालत सजी हुई है और एक सहाबी आते हैं परेशान हाल के, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बच्चा गुम हो गया है। इतनी ही देर में वहीं दूसरे सहाबी तशरीफ फरमा थे, तो उन्होंने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने इनके बच्चों को देखा है, और वो मैं जब आ रहा था तो रास्ते में वो खेल रहा था बच्चों के साथ में। इतना सुनना था, बाप की शफकत थी, मोहब्बत थी, हमदर्दी का दरिया मोजजन था। उठे चल दिए तो बुलाया जाता है कि इधर आओ, रुको, अभी मत जाना। फरमाया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी क्या हुक्म है? मेरा बेटा है, मेरी ममता, मेरी औलाद है, मैं उसे जल्द से जल्द देखना चाहता हूँ। बोले जरूर जाओ, लेकिन देखो एक काम करना, जब जाओ तो उसे बेटा ना कहना। क्यों? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी औलाद है, मेरा वो लख्ते जिगर है। हाँ तुम्हारी वो औलाद है, लेकिन वहां बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो बगैर बाप के हैं। तो ऐसा ना हो कि उनकी आंख में आंसू आ जाए बच्चों के, जब वो देखें उनके दिल से ना निकले, वो ये ना कहे काश आज मेरा बाप मेरे सर पर होता। इस उम्मत की, इस रसूल की उम्मत में हम हैं। ये तारीख का एक वाकया काफी है हमें झंझोड़ने के लिए, एहसास बेदार करने के लिए और समझने के लिए। तो यहां से माइकल हार्ट कहता है कि यहां से मेरा नजरिया बदला जिंदगी का। मैंने देखा कि जिसका रसूल ऐसा हो और जो ऐसी शख्सियत हो, तो वो सबसे ज्यादा टॉप पे और सबसे ज्यादा काबिल एहतराम शख्सियत है। उसी के हम उम्मत में है। तो मेरे दोस्तों, मेरी गुजारिश है आपसे कि इस तरह थोड़ी तवज्जो दें। अल्लाह ने इतना नवाजा है कि आपके साथ नस्लें भी खाएंगे ना, कम नहीं होगा। और एक चीज याद रखें कि निज़ाम कुदरत और निज़ाम फितरत ये कि जो चीज दी जाती है उसमें इजाफा होता है, ख्वाह वो इज्जत हो, शोहरत हो या दौलत हो। आप बांटते रहें, इसमें इजाफा होता रहेगा। इसे सोच की समझ की बात है कि नहीं हम इसे अपने तक रखें, बढ़ जाएंगे। नो नेवर, ऐसा नहीं है। इन चीजों को बांटना सीखिए, इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में बाहर आएगी। मैं यहाँ पर चंद चेहरे नौजवान भी देख रहा हूँ इधर उधर, उनसे मेरी एक गुजारिश है कि नौजवान एक बात को याद रखना कि पूरी अपनी सलाहियत जो है ना अपने ऊपर लगाएं, तालीम पर लगाएं। और यहाँ पर ऐसे भी वाकयात आते हैं कि किसी गरीब की बच्ची थी, उसने डॉक्टरी कर लिया, इंजीनियर बन रहे, लेकिन ऐसे मुट्ठी भर लोग हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। तो पूरी तवज्जो अपने ऊपर दें और उस बात का ख्याल रहे कि माल के पीछे ना पड़े। आप जिस फील्ड में हैं
اس میں کمال پیدا کر لیں، مال خود بخود پیدا ہو جائے گا. تو یہی زندگی کا حسن و جمال ہے، یہی زندگی کی رنگینی ہے، اور اسی سے آپ ترقی کا سفر طے کریں گے. میں اگر اپنے بارے میں کچھ آپ کو بتانا چاہوں، میں کسی بڑے جاگیردارانہ یا مالدار گھرانے سے میرا تعلق نہیں ہے. میری پرورش اسی سرزمین سے ہوئی ہے، یہ میں یہیں سے اٹھا ہوں، میں آج بھی وہی ہوں. یہ جو کچھ ہے ماں باپ